Good morning. I just recap what we have learned in previous lectures. Then we start with the problems क्योंकि अभी हमने basic accounting discuss कर लिए. Now, what we have learned in case of the amalgamation, the procedure means it will be in the 3 steps. First, we have to compute the purchase consideration. Second is the books of, we are going to close the books of transferor company, and then we'll be closing the books of transferring company. These are the 3 stages in which the accounting has to be done. Now, when it comes to the purchase consideration, AS 14 says purchase consideration means consideration payable to shareholders, and shareholders means equity shareholders and preference shareholders. Now, the consideration payable to debenture holders and creditors will not be forming part of PC. Then यहाँ पे नॉर्मल कोर्स में हम जो पेमेंट पीसी कंप्यूट करते हैं, या तो वो नेट एसेट या नेट पेमेंट या फिर लमसम कंसिडरेशन भी हो सकता है. उन्होंने बता दिया कि पीसी इतना है. Then there can be other methods also for computing the purchase consideration. Thereafter we came to the accounting of in the books of transferor company. यहाँ हमारे steps क्या होंगे? First step, we have to empty the balance sheet of transferor company. Second step, we have to PC due, then receive PC. Then afterwards we are going to do what is, we are going to compute realization gain loss, and then the consideration will be payable to whom? To the equity shareholders, जो भी आ जाएगा. Is it clear? So ये हमारे पास में simple procedure हो गया in the books of the transferor company. Now, if we have to take the procedure in the books of transferee company, then either it will be amalgamation in the nature of merger or purchase. If the 5 conditions are satisfied, then it will be amalgamation in the nature of merger, and 5 conditions are: first condition is all assets and liabilities of transferor company become the assets and liabilities of transferee company, means the all assets and liabilities taken over. Then at least 90% of the face value of the shareholders become the shareholders of transferee company. Purchase consideration is discharged in the form of equity shares in transferee company. And ये 3 प्राइमरी कंडीशंस है. फोर्थ गोइंग कंसर्न बेसिस अजम्पशन है, एंड फिफ्थ इज the assets and liabilities intended to be recorded at their book values. Then if these 5 conditions are satisfied, then it is amalgamation in the nature of merger. And then which method is applicable? Pooling of interest method is applicable. And in this pooling of interest method, what we are going to do? First, we are going to pass the entry for PC due, and the entry will be business purchase account debit to liquidator of transfer company. Then we are going to incorporate assets and liabilities, individual assets account debit, reserves account debit at book value, individually at book value. Then we are going to incorporate liabilities individually at book value, to reserves and surplus, to business purchase, and the difference between PC and paid up share capital. If the PC is more, paid up share capital of transfer company is less, then reserve debited. PC is less, paid up share capital is more, then the capital reserve is credited. Then discharge the PC, liquidator of transfer company account debit to equity share capital to securities premium. Then after this, if one or more conditions are not satisfied, then it is amalgamation in the nature of purchase, and purchase method is applicable. And steps in purchase method, पहला PC due, फिर incorporate assets and liabilities individually at agreed value. Then यहाँ पे if the PC is more than net asset taken over, then it is goodwill. If PC is less than net asset taken over, then it is capital reserve. And thereafter discharge of PC, liquidator of transfer company to equity share capital, to cash, preference share, debenture, whichever form it is, because यहाँ पे किसी भी तरीके से PC discharge हो सकता है. ठीक. And once the goodwill is arising, it has to be written off in a period of 5 years. Is this clear? यहाँ तक कोई doubt, कोई question? ठीक.
नाउ अब इसके बाद में वी टेक द एग्जाम्पल, वी कम टू दिस प्रॉब्लम नंबर 1 जो अभी शीट दी है तुम्हारे को। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? द बैलेंस शीट ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड एंड वाई कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31st December 2011 are as under. Balance sheet of X company limited. Share capital authorized capital 10,000 shares of rupees 100 each. Issued capital 10,000 shares of rupees 100 each. Fully paid reserves and surplus. Capital reserve, general reserve, unsecured loans. Thereafter, current liabilities and provisions there, sundry creditors. Then fixed assets, goodwill, other assets, current assets. Then balance sheet of Y company limited. Share capital authorized 2,000 shares of rupees 10 each. Issued capital 80,000 shares of rupees 10 each, fully paid. Reserves and surplus, general reserve, secured loan, current liabilities and provisions, sundry creditors, fixed assets, current assets, loans and advances, their bank and other. It was proposed that X company limited should be taken over by Y company limited. यहाँ पे बताओ ट्रांसफर कंपनी कौन सी है? X limited is transfer company and Y limited is transferee company. ठीक है. Then the goodwill of X company limited is considered valueless. Arrears of depreciation in X company limited amounted to rupees 40,000. Then the holder of every 2 share in X company limited was to receive at fully paid at par 10 shares in Y company limited, so much cash as is necessary to adjust the rights of shareholders of both companies in accordance with the intrinsic value of the shares as per their balance sheet, subject to necessary adjustment with regard to goodwill and depreciation in X company limited balance sheet. You are required to determine the composition of purchase consideration. Show the balance sheet after absorption. यहाँ पे हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, ठीक है? पीसी कंप्यूट करनी है एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट. एंड बैलेंस शीट कैसे बनती है कि पहली बार में ही वो टैली हो. इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90% प्रॉब्लम्स इन एग्जाम दे आस्क द बैलेंस शीट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी. सब कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गए, बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो बात तो वहीं की वहीं रही ना. तो बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए किसी भी सिचुएशन में, और एग्ज़ाम में अगर पहली बार में बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो 90% चांसेस है कि इस अटेम्प्ट में नहीं होगी. उसके लिए टैली करने के लिए नेक्स्ट अटेम्प्ट लगने वाला है. तो इसलिए क्या करना है, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि पहली बार में बैलेंस शीट टैली हो, और होती है. हमारी 100% बैलेंस शीट टैली होगी, ठीक. 90% पहली बार में, 10% दूसरी बार, दूसरे अटेम्प्ट नहीं, क्योंकि हमारे को मालूम है कि बैलेंस शीट बननी कैसे है. कुछ अगर क्लैरिकल एरर हो गई होगी तो हम ढूंढ लेंगे, हमारे को मालूम है कि वो गलतियां कहाँ से मिलनी है, ठीक है. नाउ अब यहाँ व्हाट इज टू बी डन फर्स्ट, पहला काम हमारे को क्या करना है, परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट करना है. For A part, computation of purchase consideration. एंड इसमें पहला काम हम क्या करेंगे, पहला इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कंप्यूट करके लेते हैं. यहाँ पे कौन सा मेथड होगा, एसेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज करने को बोला है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने को बोला है. सो यहाँ पे नेट एसेट मेथड ही लगने वाला है यहाँ. एंड नेट एसेट के लिए व्हाट वी आर डूइंग, पहला इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कंप्यूट कर रहा है. सो राइट स्टेप 1,
computation of intrinsic value per share. Computation of intrinsic value per share, and the columns are serial number, particulars, then X company limited and Y company limited. X company limited is transferor company and Y company limited is transferee company. क्या बोला उन्होंने? इट इज प्रपोज दैट एक्स कंपनी लिमिटेड शुड बी टेकन ओवर बाय वाई कंपनी लिमिटेड. सो वाई कंपनी लिमिटेड इज ट्रांसफरी कंपनी एंड एक्स कंपनी लिमिटेड इज ट्रांसफर कंपनी. गॉट दिस? अब यहाँ पे क्या होना है? अब उन्होंने क्या दिया हुआ है, एंड एग्जाम में ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली. नॉर्मली क्या होता है, पहली कंपनी ट्रांसफरी, दूसरी कंपनी ट्रांसफर, और उन्होंने लिखा भी सेंटेंस ऐसे ही है. इट वाज प्रपोज दैट एक्स कंपनी लिमिटेड शुड बी टेकन ओवर बाय. थोड़ा सा भी जल्दी में पढ़ा, इसको ट्रांसफरी उसको ट्रांसफर, मतलब फिर उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और बाद में ध्यान आने का कोई मतलब नहीं होता. नाउ क्योंकि अगर तुमने सही कर भी दिया तब भी तुमने एक क्वेश्चन का टाइम किल कर दिया उसमें. फिर एक गलती करके फिर सही करने का टाइम एग्जाम में होता नहीं है. 3 आवर्स का पेपर है, मतलब 3 आवर्स का पेपर है. तुम अगर टाइम वेस्ट करोगे एक क्वेश्चन में तो कहीं ना कहीं तुम्हारा पेपर छूटता है. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेंट आता है कि पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, लेंदी था पेपर. पेपर लेंदी नहीं था, हमारी स्पीड कम थी. मतलब दिस इज लैक ऑफ प्रैक्टिस. तुम क्रिकेट के मैदान पे जाके ये थोड़ी ना बोल सकते बॉलर बहुत फास्ट बॉलिंग कर रहा था, थोड़ा स्लो करता तो मैं खेल लेता, 6 भी मार के आ जाता. थोड़ा स्लो करना चाहिए था. ठीक, तो अब यहाँ पे जैसा भी बॉलर होगा भी कैसा, ये तो इंटरनेशनल मैच है. अब यहाँ पे तुम थोड़ी ना वो गली क्रिकेट वाला जो जैसा 11th-12th बीकॉम में पेपर एक्सपेक्ट करोगे उस तरीके का कि अंडर हैंड बॉलिंग करनी है. यहाँ पे अंडर हैंड बॉलिंग थोड़ी ना होगी. एंड बॉल भी लेदर की ही बॉल होगी. बाउंसर छूटा तो सीधा सिर पे ही लगता है, होश नहीं पड़ता फिर क्या हुआ. नाउ हियर ए एसेट्स. एसेट्स में उन्होंने क्या बोला, गुडविल ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड इज कंसीडर्ड वैल्यूलेस. गुडविल दी हुई है कितने की यहाँ पे, 80,000 की, दैट इज कंसीडर्ड वैल्यूलेस. एंड वाई कंपनी लिमिटेड में गुडविल है ही नहीं. देन अरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड अमाउंटेड टू ₹40,000. उनके फिक्स एसेट्स थे कितने, 8 लाख के, उसमें अरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन है 40,000. अगर ये प्रोवाइड कर दोगे तो फिक्स एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7,60,000. देन अब इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट उन्होंने नहीं दिया हुआ है. सो राइट ए एसेट्स अंडर दैट फर्स्ट फिक्स एसेट्स. यहाँ पे एक्स कंपनी लिमिटेड में 7,60,000, दिस इज 8 लाख माइनस 40,000. एंड यहाँ पे उतना ही रहेगा, दिस इज 16 लाख. वाई कंपनी लिमिटेड में कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करी है. देयर आफ्टर नेक्स्ट बैंक. एक्स कंपनी लिमिटेड में डैश, वहाँ पे 2 लाख. देन अदर करंट एसेट्स, other current assets, here this is 9 lakhs and this is 6,60,000. Take the subtotal here. Take the subtotal. This is total A, 16,60,000.
24,60,000. 24,60,000. 16,60,000 and 24,60,000. These are total assets. Then after this, B, liabilities. B, liabilities. And liabilities में we got here reverse शुरू करते हैं. पहला sundry creditors. Sundry creditors. X company limited का 3,10,000 and Y company limited का 3,60,000. 3,60,000. Thereafter secured loan, unsecured loan है वहाँ पे, ठीक है. चलो unsecured loan, unsecured loan and unsecured loan कितना 2 लाख and Y company limited में dash then secured loan dash and यहाँ पे कितना है 5 lakhs. Any other liability? नहीं. Then अब यहाँ this is total B. 5,10,000, 8,60,000. 8,60,000. Then after this, write C, net assets. This is A minus B. A minus B. 16,60,000 minus 5,10,000 कितना आया? 11,50,000. 11,50,000. This is 24,60,000 minus 8,60,000. 16 lakhs. Thereafter, the number of equity shares. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो कौन से इक्विटी शेयर्स लेंगे? जो हमारा इशूड कैपिटल है, ऑथराइज नहीं, इशूड कैपिटल. कितने इशूड शेयर्स? 10,000 शेयर्स हैं एंड यहाँ पे है 80,000 शेयर्स. नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, intrinsic value per share, this is C divided by D. This comes to rupees 115 and 16 lakhs divided by 80,000, this is rupees 20. कैसा करा? 11,50,000 divided by 10,000, that comes to 115 and there 16 lakhs divided by 80,000, that comes to rupees 20. So 115 रुपये, 115 रुपीज़ और 20 रुपीज़ हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आ गए. कुछ बेसिक चीज़ें हमारे पास ध्यान में रखने के लिए, अगर प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं तो क्या माइनस करने हैं? आंसर इज़ येस, ऑलवेज. जब भी हम इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकाल रहे हैं तो हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर निकाली जा रही है. कुछ बेसिक पॉइंट, ये इस प्रॉब्लम में आया नहीं, बट क्योंकि हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे तो जनरल चीज़ें नोट में लिख के ले लो. राइट. इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर from exam point of view is intrinsic value per equity share. Intrinsic value per equity share. इट मीन्स वॉट? अगर उन्होंने हमारे को यहाँ प्रॉब्लम में प्रेफरेंस शेयर्स दिए हुए हैं, दैट प्रेफरेंस शेयर्स शुड बी डिडक्टेड
in computing the net asset value. Is it clear? Never get confused with these things. Write next note. क्योंकि दिमाग में आता है कि प्रेफरेंस शेयर माइनस करना है कि नहीं करना है, जहां पे क्वेश्चन में दिया होता है. राइट, प्रेफरेंस शेयर्स will always be deducted in computing intrinsic value per equity share. होप दिस पॉइंट इज क्लियर. क्योंकि जब इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे होगे और प्रेफरेंस शेयर दिए होंगे तो पहला दिमाग में डाउट आता है कि प्रेफरेंस शेयर माइनस करना है कि नहीं करना है. करना है, यस. और कब? हमेशा. ठीक. इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर निकालने का मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर ही है. इज इट क्लियर? गॉट दिस? नाउ अब यहाँ तो ये सब प्रैक्टिस करके लेनी पड़ेगी जो चीज़ें हैं. क्योंकि क्या है, एग्जाम के हिसाब से प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट. कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक बात हो गई. पेपर तभी कंप्लीट होता है जब प्रैक्टिस होती है. जो हमने सीखा है उसको बार बार प्रैक्टिस करो जब तक चीज़ें एकदम परफेक्ट नहीं हो. ये गारंटीड मार्क्स हो सकते हैं, बट तकलीफ आती है पीसी कंप्यूट करने में, और यहाँ भी आएगी. क्यों? कुछ इन्फॉर्मेशन जो वो अब हमारे से पूछ रहे हैं, को कैसा दिया है इन्फॉर्मेशन. द होल्डर ऑफ एवरी 2 shares in X company limited was to receive as fully paid at par 10 shares in Y company limited, so much cash as is necessary to adjust the right of shareholders of both companies in accordance with intrinsic value of the shares as per their balance sheet, subject to necessary adjustment with regard to goodwill and depreciation in X company limited's balance sheet. So क्या बोला? The holder of every 2 share in X company limited was to receive as fully paid at par. So underline करो, fully paid at par. एक्चुअल में Y कंपनी लिमिटेड के एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू आई की है कितनी, हमने कितनी कंप्यूट करी है? Y कंपनी लिमिटेड 20 रुपीज़. ट्रांसफरी कंपनी Y कंपनी लिमिटेड है. ये ध्यान में रखने की बात है. जरा सा कॉन्सेंट्रेशन लैप्स हुआ, क्योंकि नॉर्मली पहली कंपनी ट्रांसफरी रहती है, दूसरी ट्रांसफर रहती है. वहाँ पे उन्होंने उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा दिया हुआ है. इज दिस क्लियर? ठीक है. एंड सो उसके एक शेयर की वैल्यू है तो वैसे 20 रुपीज़, बट जब हम इशू दिखाएंगे तो 10 रुपीज़ पे. ये सब एक्चुअल में एरर्स हैं, बाद में डिस्कस करेंगे. ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग की एरर है, बट ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. ठीक. नाउ so much cash as is necessary to adjust the right of the shareholders of both companies in accordance with intrinsic value of the shares as per their balance sheet, subject to necessary adjustment with regard to goodwill and depreciation in X company limited's balance sheet. So cash कितना? So much cash as is necessary to adjust the rights of shareholders of both companies in accordance with their intrinsic value as per their balance sheet, subject to necessary adjustment. मतलब जो अभी हमने intrinsic value compute करी, तो जो cash compute करना है वो intrinsic value के हिसाब से compute करना है. पर जब फाइनली शेयर इशू दिखाने हैं तो वो पार वैल्यू पे दिखाने हैं. क्या हो रहा है? वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो कैश है, कैश विल बी एज पर देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, बट बाद में जब हम शेयर एक्चुअल में इशू करेंगे तो उनको पार पे इशू करना. अब कैसा है, वो दिमाग में कंफ्यूजन तो हो ही जाता ना कि इंट्रिंसिक वैल्यू की पार वैल्यू. दोनों कैश निकालते टाइम पे क्या कंसीडर करना है? शेयर्स की इंट्रिंसिक वैल्यू, बट एक्चुअल में इशू करते टाइम पे उसे किस पे दिखाना है? पार पे दिखाना है.
तो यहाँ पे अब हमारे को पहला काम क्या आएगा, विल हैव टू कंप्यूट कि कैश कितना देना है। क्या बोला उन्होंने, पॉइंट नंबर सी, रीड अगेन, क्योंकि यही तकलीफ देता है। अभी इसमें हम ट्रांसफर और ट्रांसफरी दोनों करेंगे, ट्रांसफर की भी बुक्स क्लोज करके लेंगे, ठीक है। एक बार मैंने जो फ्लो बताया है वो फ्लो दिखाऊंगा कि मैं वो फ्लो आता कैसे है। इज इट क्लियर, ठीक। बहुत कम टाइम में हो जाता है ट्रांसफर कंपनी, ठीक। ट्रांसफर कंपनी की बैलेंस शीट पहली बार में बन जाएगी, इसलिए नहीं कि मेरे को मालूम है, मैं तुम्हारे से बनवा लूँगा, ठीक है। एंड गारंटीड बनती है बैलेंस शीट। देन अब यहाँ पे सिर्फ तकलीफ क्या है, वो इस तरीके के प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकती है। क्या हुआ, सो राइट स्टेप 2, स्टेप 2 computation of cash payable to shareholders. Computation of cash payable to shareholders, and what they are giving, the holder of every 2 shares in X company limited was to receive कितने शेयर्स, 2 शेयर, किसमें, X कंपनी लिमिटेड। X कंपनी लिमिटेड के एक शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, X कंपनी लिमिटेड के एक शेयर के 115 है, ठीक। सो उन्होंने क्या बोला, होल्डर ऑफ एवरी 2 शेयर। सो यहाँ पे X कंपनी लिमिटेड 2 शेयर्स ऑफ X company limited, it means this is 2 into 115, this is rupees 230, ठीक। holder of every 2 shares in X company limited was to receive 10 fully paid shares at par. So क्या, fully paid shares in X company limited कितने, 10 shares, and balance in cash, जो बैलेंस कंसिडरेशन है वो कैश, दिस इज बैलेंस, हाँ सॉरी, in Y company limited and balance in cash. Hope this is understood. क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, holder of every 2 shares in X company limited, so 2 shares, एक शेयर की intrinsic value कितनी, 115, to get what, fully paid shares in X company limited कितने, 10 shares, ठीक। then हाँ, Y कंपनी लिमिटेड, दिस इज इन Y कंपनी लिमिटेड, क्योंकि ट्रांसफरी कंपनी तो Y कंपनी लिमिटेड है। सो Y कंपनी लिमिटेड के 10 शेयर्स, सो मच कैश एज इज नेसेसरी टू एडजस्ट, so much cash as is necessary to adjust the rights of shareholders of both companies in accordance with intrinsic value of the shares as per their balance sheet, subject to necessary adjustment with regard to goodwill and depreciation in X company limited। तो जो हमने इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली है उसमें गुडविल और डेप्रिसिएशन का हमने एडजस्टमेंट करके लिया है, ठीक। तो अब ये जो शेयर्स हैं, इन शेयर की क्या लेनी है, अभी कैश निकालते टाइम पे कौन सी वैल्यू लेनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू लेनी है। अब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है कितनी, 20 रुपीज, ठीक। इस शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, दिस इज ₹20, सो ये कितना आ गया, 200 रुपीज। तो जो 10 शेयर्स इशू करेंगे उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी, 200, तो जो बैलेंस बचा वो क्या हुआ, कैश। कैश इज ₹30, कैसे, 230 माइनस 200 जो बैलेंस बचा, दिस इज द कैश यू आर हैविंग। तो ये जो कैश आया ये 2 शेयर के लिए आया, ये कैश किसके लिए आया,
2 शेयर के लिए, तो 1 शेयर के लिए कितना कैश हो जाएगा? 15 रुपीज़ का कैश होगा। हाँ, अभी जब हम पीसी निकालेंगे तो एट पार ही आएगा। जब पीसी निकालोगे तो वो एट पार ही आएगा, बट अभी कैश की वैल्यू निकालने के लिए हमारे को इंट्रिंसिक वैल्यू लेनी पड़ रही है। इज इट क्लियर? ठीक। देन तो यहाँ हमारा कैश निकल गया। ठीक, इसको स्टेटमेंट में बना के कर लेते तो इंट्रिंसिक वैल्यू 2 शेयर्स उसमें, चलो अभी ऐसे ही रख लेते हैं। ठीक है। देन अब नेक्स्ट इज स्टेप 3। स्टेप 3 विल बी, नोट कर लिया? स्टेप 3 इज कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। स्टेप 3 computation of purchase consideration। ठीक, अब यहाँ पे 3 कॉलम, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सीरियल नंबर, write a consideration payable in equity shares, consideration payable in equity shares, एंड वो कैसा आएगा? कितना शेयर बोला उन्होंने? फॉर एवरी 2 शेयर्स, हाउ मेनी शेयर्स? 10 शेयर्स इन वाई कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब एक्स कंपनी लिमिटेड के टोटल शेयर्स हैं कितने? 10,000 शेयर्स हैं। सो इन ब्रैकेट राइट दिस इज 10,000 शेयर्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। कितने शेयर्स हो गए? 50,000 इंटू ₹10। हमारे को उन्होंने क्या बोला है कि ये शेयर इशू होने हैं एट पार, बट कैश के लिए हमारे को इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू कंसीडर करनी थी। इज इट क्लियर? सो दैट कम्स टू ₹5 lakhs। देन आफ्टर दिस बी कंसिडरेशन payable in equity shares, sorry, in cash, कितना कैश? 30 रुपीज़ का कैश। कितने शेयर्स के लिए? 2 शेयर्स के लिए। सो दिस इज 10,000 शेयर्स डिवाइडेड बाय 2 शेयर्स इंटू ₹30। दिस कम्स टू ₹1,50,000। So write C total purchase consideration. This is 6,50,000। टोटल परचेज कंसिडरेशन 6,50,000। एक्चुअल में ये कंसिडरेशन होनी चाहिए थी 11,50,000। क्या हो रहा है यहाँ पे? गलती क्या है कि हम जो 20 रुपीज़ का शेयर है उसको ये बोल रहे हैं कि इशू कर दिया कितने पे?
₹10। ये सब एरर्स हैं। भी जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे तब क्या होना है, एवरीथिंग हैज़ टू बी एट इट्स फेयर वैल्यू, भले ही वो कंसिडरेशन हो या जो हम एसेट लायबिलिटी एक्वायर कर रहे हैं, बुक वैल्यू एटसेट्रा सब खत्म हो जाएगा, ठीक। एंड फाइनली व्हाट यू आर गोइंग टू हैव, एवरीथिंग जो कंसिडरेशन है उसके लिए शेयर्स इशू करे, जो भी करा, एवरीथिंग विल बी एट फेयर वैल्यू, सब बुक वैल्यू एटसेट्रा का सब कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक, तो हमारे लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें, बट वो फाइनल पे तुम्हारे को मिलेगा। यहाँ पे तो यही ऐसा ही चलने वाला है। इज इट क्लियर? ठीक है। और बहुत इलॉजिकल सी चीज़ है। कैसा है, मैं तुम्हारे को 20 रुपए का नोट दे रहा हूँ, बट अपनी बुक्स में लिख रहा हूँ कि मैंने 10 का नोट दिया है, तो बात वही ना। शेयर की वैल्यू है कितनी, 20 रुपीज़ वैल्यू है शेयर की, दे रहा हूँ मैं 20 रुपीज़ का शेयर, बट लिख रहा हूँ कि 10 का शेयर दिया, और फिर बाद में खुश भी होंगे यहाँ पे हम कि 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। कैपिटल रिजर्व आएगा अब हमारा, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आएगा, और खुश भी होंगे कि अरे मैंने कितना बढ़िया काम किया, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। जबकि सामने वाला सोच रहा होगा कि कैसा बेवकूफ़ है, 20 का नोट दे रहा और बोल रहा कि 10 का नोट दिया। नाउ अब यहाँ इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हमारे को, वी हैव टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। पूछा नहीं है, हम बना रहे हैं, ठीक, क्योंकि हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं कर रहे हैं, तो एक ही प्रॉब्लम में हम सब कुछ करके लेंगे, ठीक है। ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, एवरीथिंग। एक मैंने परचेज मेथड का लिया और एक पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट का लिया है, ठीक। तो एक बार दोनों मेथड हमारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, बट प्रैक्टिस लगती है, प्रैक्टिस बहुत लगती है इन सब चीज़ों के लिए। बोलना मेरे एंड से आसान होता है कि गारंटी से टैली होगा, पर उसके लिए मेरे पास में जो प्रैक्टिस है, और अगर तुम्हारी उतनी एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं है तो फिर वो चीज़ें मैच नहीं होती। इज इट क्लियर? ठीक। नाउ राइट, लेजर अकाउंट्स in books of X company limited, transferor company, X company limited, transferor company। यहाँ पे हमारे अकाउंट्स क्या लगेंगे, पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट, फिर शेयर, हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, देन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट विच इज वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट, देन शेयर्स या इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, एंड एक और अकाउंट बना लेंगे कैश फ्रॉम वाई लिमिटेड अकाउंट, क्योंकि कैश भी मिल रहा है। एक्चुअल में वो बिना बनाए भी हो सकता है, बट बना के लेंगे तो बेटर रहेगा। इसका जो कैश है, इसमें कैश नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे अकाउंट्स हो गए रियलाइजेशन अकाउंट, realization account, then equity shareholders account, then इसके बाद में ट्रांसफरी कंपनी दैट इज वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट, this is transferee company, then equity shares from Y company limited account, and cash from Y company limited account।
नौ, पहला काम क्या करना था, ट्रांसफर कंपनी की बुक्स में बैलेंस शीट एम्प्टी करनी है, फिर पीसी ड्यू करनी है, पीसी रिसीव करनी है, रियलाइजेशन गेन लॉस निकालना है, ट्रांसफ़र कर देना है पीसी टू शेयर होल्डर्स। दीज आर द स्टेप्स यू आर हैविंग। नाउ बैलेंस शीट जब तुम एम्प्टी कर रहे हो, everything has to be transferred at its book value irrespective taken over not taken over at what value taken over, ठीक। देन अब यहाँ कहाँ से शुरू करेंगे, लाइबिलिटीज एक कॉर्नर से शुरू करके दूसरे कॉर्नर तक जाएंगे, ठीक, हैपजर्ड मैनर में नहीं। देन इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ चला जाएगा, शेयर होल्डर्स अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 10 lakhs, by capital reserve 2 lakhs, by general reserve 70,000। देन अनसिक्योर्ड लोन कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, सोचो ही मत कि क्या वैल्यू क्या नहीं, ठीक है, बाय अनसिक्योर्ड लोन how much, 2 lakhs, by sundry creditors 3,10,000। then to goodwill कितना लिखूं, 80,000। तुम क्या कर रहे हो, अपनी बुक्स में गुडविल अकाउंट क्लोज कर रहे हो, ठीक। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, जो शेयर कैपिटल मैक्सिमम इशू करा जा सकता है, कहाँ लिखा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। हमारी बुक्स में नहीं आया ये, हमारी बुक्स में वो आएगा जिसकी जो तुमने इशू किया, वो तो सिर्फ उसको दिखा रहे हो कि ऑथराइज्ड इतना है। 9 लाख लेंगे ना, मैं वही बता रहा था, ऑथराइज कैपिटल कहाँ रहता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आता है, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप आता है, ठीक है, जो इशू करोगे उतना ही आएगा बस। देन टू अदर फिक्स एसेट्स कितना, 8 लाख। सोचो मत कि इसकी वैल्यू वहां कितनी लिखी थी, ठीक, जो बैलेंस शीट में उसमें से उतार के वैल्यू लिखो। टू करंट एसेट्स 9 lakhs, बैलेंस शीट एम्प्टी हो गई। अब इसके बाद क्या करोगे, पीसी ड्यू, पीसी कैसे ड्यू होगी, एंट्री क्या है, ट्रांसफरिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो ट्रांसफरिंग कंपनी मतलब वाई कंपनी लिमिटेड अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना, 6,50,000 एंड रियलाइजेशन अकाउंट बाय वाई कंपनी लिमिटेड 6,50,000। ये क्या है, पीसी ड्यू है, ये हमने पीसी ड्यू कर दी। इज दिस क्लियर? नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट इज व्हाट, अब क्या करेंगे, पीसी रिसीव करेंगे। पीसी किस फॉर्म में हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड कैश। से यहाँ पे वाई कंपनी लिमिटेड में बाय इक्विटी शेयर इन वाई कंपनी लिमिटेड 5 lakhs, बाय कैश फ्रॉम वाई। मैंने डेलिबरेटली उसको कैश, सिर्फ कैश नहीं लिखा, कैश फ्रॉम वाई लिमिटेड लिखा। कैश फ्रॉम वाई लिमिटेड अकाउंट 1,50,000 एंड यहाँ पे टू वाई कंपनी लिमिटेड 5 lakhs
कैश वाले अकाउंट में टू वाई कंपनी लिमिटेड, अब इसके बाद क्या कंप्यूट करना है, रियलाइजेशन गेन लॉस। बताओ गेन आएगा कि लॉस आएगा? लॉस आएगा। कितना आएगा? 6,20,000। ठीक, ये कैलकुलेशन सोच के देखो कैसे हो रही है। मैंने क्या बताया था, रियलाइजेशन गेन लॉस क्या आता है? इट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस पीसी एंड शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का टोटल लो, शेयर होल्डर्स फंड मीन्स शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो यहाँ पे शेयर कैपिटल कितना? 10 lakhs, रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों का टोटल मिला के कितना आया? 2,70,000। सो दिस टोटल कम्स टू 12,70,000। इसके मुकाबले में पीसी कितना? पीसी इज 6,50,000। सो बताओ रियलाइजेशन का गेन लॉस कितना आया? सो लॉस आ गया 6,20,000। ठीक, तो क्या ये अकाउंट बनाने के पहले पता था हमारे को? जैसे पीसी पता चली ये तो अमाउंट तुम्हारे को मालूम था, तो आएगा ही। गलती करोगे तो ढूंढोगे गलती कहाँ हो गई। ठीक, अब ये सोचो इसमें गलती होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। पीसी अगर सही निकला तो ये अमाउंट भी सही ही निकलेगा। इज इट क्लियर? ठीक, बहुत सिंपल है चीज़ें, एंड दिमाग को इधर उधर दौड़ाना ही नहीं, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करो, एंड इफ यू डू दैट काम होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक, देन अब यहाँ पे ये लॉस आया। सो लॉस है हमारा कितना? 6,20,000। सो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बाय equity shareholders account 6,20,000. This is loss on realization, and here equity shareholders account में to realization account $6,20,000। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टैली होगा 12,70,000 से। चलो करते हैं। देन अब इसके बाद में ये जो हमारे पास शेयर्स हैं इसको ट्रांसफ़र कर दो शेयर होल्डर्स बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 5 lakhs, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट टू equity shares from Y company limited 5 lakhs। अब इसके बाद में ये कैश भी ट्रांसफ़र कर दो शेयर होल्डर्स को बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 1,50,000 and equity shareholders account to cash from Y company limited account 1,50,000। अब इस अकाउंट का टोटल कितना? 12,70,000। आसान है, आसान है, इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक, बिल्कुल चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो फॉलो करो, थिंग्स विल मैच। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक ही इशू बचता है एग्ज़ाम में कि पीसी सही कंप्यूट होना चाहिए था। वो कंप्यूट नहीं किया सही तो फिर बस उसके बाद में तो बस सारा की सारी चीज़ें गलत ही हो जाएंगी, एंड मार्क्स में बहुत सब्सटेंशियल डिफरेंस, सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और पीसी के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। ठीक, यहीं पे इसी प्रॉब्लम में वो ये बोल सकते थे कि इंट्रिंसिक वैल्यू पे इशू हुए शेयर्स, बट उन्होंने बोला कि पार पे इशू हुए।
कैश निकालने में इंट्रिंसिक वैल्यू, बट इशू करते टाइम पे पार वैल्यू। कुछ भी हो सकता था ना, कुछ और भी लिखा जा सकता था। तो पीसी कैसे आएगा उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, वो तुम्हारे को प्रॉब्लम में समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस उसी के लिए लगेगी। ठीक, ये चीज़ें एक बार थोड़ा सा करोगे, दिमाग में वो प्रोसीजर बिठाओ, होने लग जाएंगी चीज़ें। गेन लॉस निकाल दिया, शेयर होल्डर्स अकाउंट का टोटल तुम्हारे को पहले से मालूम है, तो क्यों टेंशन लेना ना, होंगी ही ना चीज़ें मैच। बट सिर्फ इसमें एक चीज़ है कि जो बैलेंस शीट है वो सही फॉर्मेट में बनी हुई होनी चाहिए। मतलब जो पुराने फॉर्मेट में जिसमें हो सकता P&L का डेबिट बैलेंस इधर एसेट में लिखा हो, फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखे हों, तो फिर क्या होता है, फिर वो फाइनली उधर वो एग्जैक्ट मैच होता नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक, क्लियर हुआ। ट्रांसफरर कंपनी, कोई इश्यू दिमाग में इसमें सोचो मत कि गुडविल कितने पे लेके जानी। बैलेंस शीट में देखो, पीसी की तरफ मत देखो, बिल्कुल नहीं सोचना है कि पीसी कैसे कंप्यूट करा, सिर्फ हमारे को चाहिए कितना कंप्यूट करा। कैसे का सोचना नहीं है कि कैसे कंप्यूट हुआ, क्या सोचना है कितना कंप्यूट हुआ, बस वो अमाउंट जो आ गया 6,50,000, बस काम हो गया हमारा। इज दिस क्लियर, एवरीबडी गॉट दिस? ठीक, अब इसके बाद में हमारे को क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट के लिए हमारे को क्या करना होगा, पहले एंट्री पास करेंगे, भले ही पूछी हो या नहीं पूछी हो। बिना एंट्री पास करे हम कभी भी बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। ठीक, पूछी हो या नहीं पूछी हो, वर्किंग नोट में लिखो। और एंट्रीज कैसे होती हैं इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी, पहला पीसी ड्यू, फिर इनकॉर्पोरेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज, देन डिस्चार्ज पीसी। अगर कुछ और एडजस्टमेंट दिए होंगे तो वो हम करेंगे, बट ये बेसिक एंट्री हमारी इतनी ही रहेंगी। नाउ अब मैं बताता हूँ फिर बैलेंस शीट। बिना इसके बैलेंस शीट बनाना इज रिस्की। ये 5 मिनट लगेंगे एंट्री पास करने में, गारंटी के साथ बैलेंस शीट टैली होगी। सो राइट, ये हमारे लिए वर्किंग नोट है क्योंकि पूछा नहीं। ठीक, सो राइट, वर्किंग नोट। Journal entries in books of Y Company Limited, transferee company। बताओ, amalgamation the nature of merger की परचेज, amalgamation the nature of merger की परचेज। परचेज कैसे, क्या कंडीशंस थी हमारी, बताओ। फर्स्ट, ऑल एसेट्स लायबिलिटीज टेकन ओवर, आंसर इज यस, सब लिया, गुडविल नहीं लिया। देन 90% ऑफ द शेयर होल्डर बिकम शेयर होल्डर, वो ठीक है। परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, नहीं, कैश दिया है, एक और कंडीशन वायलेट हो गई। गोइंग कंसर्न बेसिस, यस। एसेट्स लायबिलिटीज इंटेंडेड टू बी रिकॉर्डेड एट बुक वैल्यू, नो, गुडविल को नहीं ले रहे हैं, फिक्स एसेट की वैल्यू बदल रहे हैं। 5 में से अगर एक भी कंडीशन वायलेट हो जाती है, देन दिस इज नॉट अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर, दिस इज अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज। सो दिस इज अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज। in the nature of purchase. Amalgamation in the nature of purchase and serial number, particulars, debit and credit. एंड होपफुली सबको शेड्यूल 3 का नया फॉर्मेट क्लियर है, ठीक है। डायरेक्टली उसी फॉर्मेट में बनाएंगे बैलेंस शीट अभी, पर उसमें शेड्यूल्स नहीं बनाएंगे, शेड्यूल बनाने में बहुत टाइम जाता है, ठीक है। हम यहीं पे ही लिख के ले लेंगे उसको। नाउ फर्स्ट एंट्री पीसी ड्यू। पीसी ड्यू क्या एंट्री होगी इसके लिए? बिजनेस परचेज
अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड कितना 6,50,000। तो हमारा पीसी कितना आ गया 6,50,000। देन after this second entry will be for incorporation of assets and liabilities. Incorporation of assets and liabilities. Incorporation of assets and liabilities. अब यहाँ पे क्या आएगा, फिक्स एसेट्स गुडविल इनकॉर्पोरेट होनी है, नहीं, दैट इज कंसीडर्ड वैल्यूलेस। तो हमारे पास फिक्स एसेट्स आएंगे, फिक्स एसेट्स कितने पे 7,60,000, क्योंकि उन्होंने बोला था अरियर्स और डेप्रिसिएशन कितने हैं 40,000। देन डेबिट कितना 9 lakhs, 1 to line blank to sundry creditors 3,10,000 to unsecured loans, this is 2 lakhs, 2 lakh है, and anything else नहीं, टू बिजनेस परचेज, टू बिजनेस परचेज 6,50,000। अब यहां कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 lakhs। तो ये क्या आ गया, कैपिटल रिजर्व आ गया। सो 2 कैपिटल रिजर्व 5 lakhs, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। इज इट क्लियर, गॉट दिस नाउ। अब इसके बाद discharge of PC. For discharge of PC, liquidator of X company limited account debit कितना 6,50,000 to equity share capital account 5 lakhs to cash or bank account 1,50,000। ठीक, अब इसके बाद हमारे को बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट कैसे बनेगी, जो हमारी एक्स कंपनी लिमिटेड की वाई कंपनी ट्रांसफरी कंपनी की बैलेंस शीट प्लस जर्नल एंट्रीज। अब इसमें एक्स कंपनी लिमिटेड छुपा दो, ठीक, देखनी ही नहीं है वो बैलेंस शीट। ठीक, सिर्फ हमारे सामने क्या है, सिर्फ ये वाई कंपनी लिमिटेड। अगर कॉलमनर बनाओ तो उस पर स्केल रख दो। ट्रांसफरर कंपनी की बैलेंस शीट देखनी ही नहीं है। दो बैलेंस शीट मिला के बैलेंस शीट नहीं बन रही है। सोच के देखो, टैली पे अगर अकाउंटिंग कर रहे होते तो क्या करते, वाई कंपनी लिमिटेड की बुक्स में उसके लेजर्स होते, एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसके बुक्स खोलते, उसमें ये एंट्री पास करते और बैलेंस शीट तो सॉफ्टवेयर बना के देता। तुम क्या करते, बैलेंस शीट मिला के बैलेंस शीट बना रहे होते, नहीं, तुम क्या करते, एंट्री पास करते। एंट्री जैसे ही पास करते तो सॉफ्टवेयर अपने आप बैलेंस शीट बना के देता। ठीक, तो क्या बिना एंट्रीज के बैलेंस शीट बन रही है? नहीं, ये गलत प्रोसीजर है।
जब तुम बिना एंट्री पास करे बैलेंस शीट बनाओगे तो तुम्हारी बैलेंस शीट बनने में तकलीफ आएगी। ठीक, तो अब क्या करना है, कौन सी बैलेंस शीट ली हमने, वाई कंपनी लिमिटेड की। एक्स कंपनी लिमिटेड की देखना नहीं, पीसी कैसे कंप्यूट हुआ देखना नहीं, क्या चीज़ें नहीं देखनी। अब हम कहाँ हैं, ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में हैं। अब हमने ये नहीं देखना कि बैलेंस शीट एक्स कंपनी लिमिटेड में क्या हुआ, ये नहीं देखना कि पीसी कैसे कंप्यूट हुआ। सिंपल हमारे को ये एंट्रीज उठानी है और वाई कंपनी लिमिटेड की पुरानी बैलेंस शीट देखनी है। ठीक है, नाउ ड्रॉ कर लेते हैं बैलेंस शीट और एक एक करके हम आइटम टिक करते जाएंगे, बैलेंस शीट का और एंट्रीज का। और अपने आप में ही खुद सोच के देखो, अगर ये वाई कंपनी लिमिटेड की टैलीड बैलेंस शीट है, उधर एंट्री टैलीड है, हर डेबिट क्रेडिट बराबर रखा है, अब बताओ बैलेंस शीट टैली होगी कि नहीं होगी, होगी ही। ठीक, अगर तुम ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे, दोनों बैलेंस शीट का टोटल करके बैलेंस शीट बना रहे होगे, जो अक्सर 99% स्टूडेंट करते हैं, तो गड़बड़ होने के 90% चांसेस हैं। पहली बार में टैली होती नहीं, और पहली बार में एग्जाम में टैली होना बहुत ज़रूरी है। अभी तो क्या है, टैली हो जाएगी, नहीं भी टैली हो तो कैसे ना कैसे करके, बहुत एम्पल टाइम होता है अभी हमारे पास में। एग्जाम में नहीं होता, 30-35 मिनट है टोटल सब करने के लिए। नाउ सो राइट, बैलेंस शीट of Y Company Limited after absorption of X Company Limited. Here serial number, particulars and to amount column. Serial number, particulars and to amount columns. Now, A, equity and liabilities. Equity and liabilities. Under that, first, shareholders fund. Under that, A, share capital. And in this share capital, equity share capital of ₹10 each. अब यहाँ पे क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कितना है, 8 लाख। अपनी बैलेंस शीट का शेयर कैपिटल लिया, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लो 8 लाख अपना, प्लस अब एंट्री चेक करो, एंट्री चेक करो, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 5 लाख, इसको टिक कर लो। ठीक, इक्विटी शेयर कैपिटल हमने 5 लाख टिक कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे वापस आ जाओ, कितना, 8 लाख प्लस 5 लाख कितना आया, 13 लाख। Then after this, reserves and surplus.
रिजर्व्स एंड सरप्लस में फर्स्ट कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अपना देखो कितना है कैपिटल रिजर्व, बैलेंस शीट में दिख रहा है कहीं? नहीं, तो अपना है 0 प्लस एंट्री में चेक करो कितना कैपिटल रिजर्व, दिस इज 5 lakhs, कैपिटल रिजर्व 5 lakhs। एंट्री में चेक करो, एंट्री में ये हमारे पास आया 5 lakhs। इज दिस क्लियर? तब यहाँ कितना आ गया, दिस इज 5 lakhs। तो ये टोटल कितना हुआ, 5 lakhs। देन जनरल रिजर्व, अपनी बैलेंस शीट में कितना है, 8 lakhs प्लस एंट्री देखो, एंट्री में कहीं जनरल रिजर्व दिखा तुम्हें? नहीं, तो क्या हो गया 0। तो कितना आया 8 lakhs। तुम अगर एक्स कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं देखोगे ना, तुम्हारे को कंफ्यूजन नहीं होगा, उधर लिखा हुआ जनरल रिजर्व एटसेट्रा, तुमने देखा ही नहीं, कंफ्यूजन हुआ ही नहीं। तुमने क्या देखा, वाई कंपनी की बैलेंस शीट देखी और जो एंट्री पास करी वो देखी। देन इसके बाद में और कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये टोटल शेयर होल्डर फंड लिख दूं मैं, टोटल आउटर कॉलम में कितना, 26 lakhs। देन अब इसके बाद में नॉन करंट लायबिलिटीज, एक्चुअल में तो क्या करोगे, पीछे जब नोट्स बनाओगे तो अपना ओपनिंग ऐड जो हमारा एक्विजिशन में आया मर्जर में, ठीक है, वो वहाँ पे ऐड होके फिर वो नोट्स टू अकाउंट्स फिर इधर आ जाएंगे। अभी यही हम जो नोट्स टू अकाउंट में जो करना था वो कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास क्या है, इधर है सिक्योर्ड लोन, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत टाइम जाता था इसलिए मैंने वो नहीं किया। दिस इज अपना 5 lakhs प्लस एंट्री में देखो सिक्योर्ड लोन नहीं है, ठीक है। सो दिस इज 0। तो कितना आ गया 5 lakhs। देन अनसिक्योर्ड लोन, अपना कितना 0 प्लस एंट्री में देखो, एंट्री में कितना है, ये अनसिक्योर्ड है 2 lakhs, अनसिक्योर्ड है 2 lakhs, दिस इज 2 lakhs। तो कितना आ गया, दिस इज 2 lakhs। $7 lakhs। This is clear, got this? Then अब इसके बाद में करंट लायबिलिटीज, लेकिन बहुत सिंपल है, बैलेंस शीट बनाना तो सबसे सिंपल काम है, सिर्फ एंट्री पहले पास हो जानी चाहिए बस, और वो भी मैनेज करी जा सकती हैं। करंट लायबिलिटीज, उसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स, अपने कितने हैं 3,60,000 प्लस उधर एंट्री में चेक करो 3,10,000, 3,10,000। तब यहाँ पे 3 लाख, तो कितना आ गया 6,70,000। और कुछ है नहीं तो डायरेक्टली आई एम टेकिंग टू द आउटर कॉलम एंड टेक द टोटल
39 lakh, और हमारे एग्जाम में ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम थोड़ी ना पूछे जाते हैं, ऐसे से ही प्रॉब्लम रहते हैं, थोड़े बहुत और आएंगे बट बहुत ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं आता पेपर, ठीक है। देन इसके बाद में अब ये अगर प्रॉब्लम सही सॉल्व भी हो गया बट ज़्यादा टाइम लगा के सॉल्व हुआ, ये 25 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। हमने तो ट्रांसफर कंपनी की बुक्स भी क्लोज करी, ये सब करा, ठीक है। देन बी एसेट्स, अंडर दैट नॉन करंट एसेट्स, under that fixed assets, their tangible assets, अपने फिक्स एसेट्स देखो कितने हैं 16 lakhs, और उधर एंट्री में देखो, एंट्री में देखो कितना है 7,60,000, 7,60,000। टिक करते जाओ, एक एक करके जब टिक करते जाओगे तो गड़बड़ी होने के चांसेस रहेंगे ही नहीं। दिस इज 23,60,000। देन इंटेंजिबल एसेट्स, अपनी बुक्स में नील, उधर एंट्री में देखो किधर है क्या गुडविल एटसेट्रा कुछ है नहीं, तो इधर भी हमारा नील, 0, सो दिस इज 23,60,000। देन आफ्टर दिस करंट एसेट्स, under that write bank, अपनी बुक्स में देखो कितना है 2 lakhs, और उधर हमने क्या करा है 1,50,000 कैश एंड बैंक क्रेडिट करा है, तो ये करा है तो ये माइनस आएगा ना वैल्यू, ठीक। minus 1,50,000, this is 50,000. Then after this other current assets, कितने हैं अदर करंट एसेट्स? अपने हैं 6,60,000, और उधर एंट्री में देखो, एंट्री में 9 lakhs है। This is 15,60,000। टोटल कितना 16,10,000, एंड बैलेंस शीट टोटल कितना 39,70,000। ठीक, बैलेंस शीट बनी, और कैसे बनी? बहुत आसानी से बनी, बिना गलती हुए। अगर गलती भी होगी, अब इसमें एक काम करते हैं, एंट्रीज़ को चेक कर लेते हैं। वैसे तो टैली हो गई, यहाँ पे सारी एंट्रीज़, ये जो बिज़नेस परचेज़ है, ये बिज़नेस परचेज़, ये डेबिट हुआ और ये क्रेडिट हुआ, कैंसिल हो गया। लिक्विडेटर क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, कैंसिल हो गया। सारी एंट्रीज हमारी कवर हो गई, सारी एंट्रीज कवर हो गई। बैलेंस शीट का एक एक आइटम कवर हो गया, मतलब हमने बैलेंस शीट सही बना दी। क्यों नहीं बनेगी ना?
तुम्हारी एक टैलीड बैलेंस शीट है, टैलीड एंट्री है, उन दोनों को मिला के बनाओगे बैलेंस शीट, क्यों नहीं बनेगी? पहली बार में क्यों नहीं टैली होगी? दूसरी बार के बारे में सोचना ही क्यों? होगा। ठीक, 90% प्रॉब्लम किस चीज़ के आने हैं? बैलेंस शीट बनाने के ही आने हैं 90% प्रॉब्लम। इज दिस क्लियर? गॉट दिस? ठीक। एंड दिक्कत होती है, हम टाइम बचाने के चक्कर में प्रोसीजर एसओपी फॉलो नहीं करते, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। प्रैक्टिकली तो तुम बैलेंस शीट बिना एंट्री पास करे बना सकते ही नहीं। ठीक, नाउ होप दिस इज द बैलेंस शीट, एवरीबडी हैज गॉट दिस। अब इसके बाद में आ जाते हैं, वी कम टू द प्रॉब्लम नंबर 2। जो हमारा क्लास में हो जाता है उसके बाद में मेहनत करो, और भी चीज़ें हैं, सब प्रैक्टिस कर लोगे, डेफिनेटली द थिंग्स विल बी मैनेज्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं सब नहीं करा सकता, तो तुम्हारे को खुद से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हम तो AS14 पढ़ रहे थे, बट AS14 में मतलब बैलेंस शीट टैली करवाना तो आना चाहिए। ठीक है, वहाँ तक चीज़ें कुछ कर ले रहा, 100% पॉसिबल नहीं है, इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नाउ द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ विभम लिमिटेड एंड शुभम लिमिटेड एज ऑन 31st March 2012, फिगर्स इन रुपीज, करोर्स ऑफ रुपीज। विभम लिमिटेड एंड शुभम लिमिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल इन इक्विटी शेयर्स रुपीज 10 each, preference share capital in 10% preference shares rupees 100 each, reserves and surplus, loans secured applied for fixed assets at cost less depreciation, current assets less current liabilities। ये पुरानी जैसी वर्टिकल बैलेंस शीट बनती थी वैसी दी हुई है। उसमें हम क्या लेते थे? नेट करंट एसेट्स लेते थे। नेट करंट एसेट्स मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। द प्रेजेंट वर्थ ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ विभम इज rupees 200 crores and that of Shubham is 429 crores. Goodwill of Vibham Limited is 40 crores and that of Shubham Limited is 75 crores. Shubham Limited absorbed Vibham Limited by issuing equity shares at par in such a way that intrinsic net worth is maintained. Goodwill account is not to appear in books. Fixed assets are to appear at old figure. यहाँ पे if you see वो हमारे को मर्जर की कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहा है। गुडविल पीसी कंप्यूट करते टाइम पे लोगे, फिक्स एसेट की वैल्यू बदलोगे, बट इनकॉर्पोरेट करते टाइम पे वापस सब कुछ बुक वैल्यू पे ले आओगे। ठीक, सब क्वेश्चंस कैसे हैं वो ट्रिकी बना रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक, एंड वन थिंग, पीसी कैसे कंप्यूट होता है और अकाउंटिंग कैसे होती है, दोनों में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। अकाउंटिंग करना अलग काम है, पीसी कंप्यूट करना अलग काम है। हो सकता है कि पीसी कंप्यूट करते टाइम पे हम एसेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज कर दें, बट फिर भी उनको बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जा सकता है। होप दिस इज क्लियर। ठीक, नाउ यहाँ पे फर्स्ट हमारे को क्या करना होगा? पहला इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कंप्यूट करना है। सो राइट, वर्किंग नोट, computation of intrinsic value per share. Columns will be serial number, particulars, Vibham Limited, Shubham Limited. This is Vibham is क्या लिखा है? शुभम लिमिटेड एब्जॉर्ब विभम लिमिटेड, ट्रांसफरर, एंड दिस इज ट्रांसफर।
A. Assets. A. Assets. And assets यहाँ पे हम उन्होंने क्या बोला है? The present worth of fixed asset of Vibham is 200 crore and that of Shubham is 429 crores. So here you will be having fixed assets. Vibham के लिए this is 200 crores and for Shubham this is 429 crores and this is the statement we are preparing in rupees. Then उन्होंने क्या बोला है? Goodwill of Vibham Limited is 40 crores and Shubham Limited is 75 crores. यहाँ पे goodwill 40 crores, this is 75 crores. Then net current assets. वो कुछ वैल्यू दिए उन्होंने, कुछ नहीं दिया हुआ है, so that will be at same value 200. मतलब कुछ चेंज वैल्यू दिया, चेंज इन वैल्यू दिया है, नहीं दिया हुआ है. तो चेंज इन वैल्यू नहीं दिया है तो जो हमारी बुक्स में दी है वही हम वैल्यू लेंगे. टोटल ए इज 440 एंड 704. Thereafter B. Liabilities. एंड लाइबिलिटीज में हमारे पास क्या है? सिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन कितना? 100 एंड 100. देन रिजर्व्स, प्रेफरेंस शेयर्स माइनस करेंगे. यस, डेफिनेटली. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डैश एंड 60. So this total is 100 and 160. Then after this, see net assets. Net assets, this is A minus B and this is 340, 534, sorry 544. Then after this, number of equity shares, number of equity shares, this is numbers crores. बताओ कितने इक्विटी शेयर्स हैं? 5 करोड़ एंड 4 करोड़. कितना इक्विटी शेयर कैपिटल था? 50 करोड़ एंड 40 करोड़ का है. फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10, सो दिस इज 5 करोड़ एंड 4 करोड़. देन आफ्टर दिस, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, this is C divided by D and this is not in rupees crore, this is in rupees. ठीक, this is in rupees. So 340 divided by 5 कितना आया? 68 and this is 136. Hope this is clear. Got this? Thereafter, what they were saying,
I'm just reading the last para here. The present worth of the fixed assets of Vibham Limited is 200 crores and that of Shubham Limited is 429 crores. Goodwill of Vibham is 40 crores and of Shubham Limited is 75 crores. Shubham Limited absorbs Vibham Limited by issuing equity shares in such a way that equity shares at par. So underline करो, by issuing equity shares at par. यहाँ पे भी वैसा ही तकलीफ है क्या? इक्विटी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ और है, 136 रुपीज़ है, बट वो इशू करवा रहे हैं एट पार इन सच ए वे दैट इंट्रिंसिक नेटवर्थ इज मेंटेन्ड. सो जो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं वो इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे निकालने हैं, बट इशू करते टाइम पे उसे पार पे ही दिखाना है. आई रीड इट अगेन. That Shubham Limited absorbed Vibham Limited by issuing equity shares at par in such a way that intrinsic net worth is maintained. Equity shares at par in such a way that intrinsic net worth is maintained. So intrinsic net worth मतलब intrinsic value के basis पे number of shares निकालोगे, but issue करते time पे उसको par पे issue करेंगे. इस सब एक्चुअल में दिस इज ऑल एब्सर्डिटी, बिकॉज द स्टैंडर्ड इज साइलेंट. yes 14 is silent. It is not saying कि फेस वैल्यू पे किस पे. It should have, if it would have stated like IFRS 3 is stating कि जो कंसिडरेशन है वो फेयर वैल्यू पे होने चाहिए. जो भी शेयर है जिस भी फॉर्म में दे रहे हो उन सब के हमारे को फेयर वैल्यू लेनी चाहिए. तो इस तरीके के क्वेश्चन ही फ्रेम नहीं होते थे. ये क्या है, जो लोग हमारे को सिखा रहे हैं उनके समझने की कमी है. दिस इज ऑल मैनिपुलेटिव अकाउंटिंग. कोई सेंस बैठता? अभी कंपनीज एक्ट 2013 सेज समथिंग व्हाट कि अगर इफ देयर इज अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मीन्स इफ यू आर issuing the shares to some class of persons without making a public issue, then shares का valuation करवाना है और जो valuation report के हिसाब से जो value आए उस पर हमारे को shares issue दिखाने हैं. मतलब तुमने कैसा, एक कंपनी है वो किसी को शेयर इशू कर देती है. से उन्होंने शेयर्स इशू कर दिए, एक से FC गोवा है, उन्होंने शेयर्स इशू कर दिए विराट कोहली को फेस वैल्यू पे कर दिए, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उन शेयर की वैल्यू ही उतनी हो गई, वैल्यूएशन तो ज़्यादा होगा. तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है कि वैल्यूएशन करवाओ, उनका जो वैल्यूएशन आए उस पर इशू दिखाओ, भले तुमने कितने पैसे लिए उससे. तुमने पैसे कम ले लिए इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कंसिडरेशन कम हो गई, कंसिडरेशन उतनी ही है. तो कंसिडरेशन किस फॉर्म में जारी होगी, किसी और फॉर्म में जारी होगी. मीन्स जब विराट कोहली बनेगा उनका शेयर होल्डर, तो जो शेयर होल्डर एग्रीमेंट में वो मैच देखने आएगा, पब्लिसिटी होती है उनकी इवेंट्स में, आफ्टर मैच पार्टीज़ में आएगा, पब्लिसिटी होती है. एग्रीमेंट में लिखा होगा कि वो इतनी इवेंट्स में आएगा, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आएगा, ये सब होगा. ये भी तो कंसिडरेशन है ना. तो अगर तुम बोलो कि 10 रुपये ले लिए 10 रुपये के शेयर के, बाकी कोई वैल्यू नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है ना. है ना वैल्यू. कोई किसी को सस्ते पे इशू करता नहीं, सिंपल सी चीज़ है. कहीं ना कहीं कंसिडरेशन होगी ना. अगर फ्री में भी इशू कर डाले, से राजस्थान की कबड्डी की टीम है, कौन सी है, जयपुर की जो कबड्डी की टीम है, अभिषेक बच्चन को 20% शेयर फ्री में इशू कर डाले. अब अभिषेक बच्चन मैच देखने आता है, ठीक, एंड अभिषेक बच्चन मैच देखने आ रहा है तो टिकट बिक जाता है. अब वो एक्चुअल में अमिताभ बच्चन को, ऐश्वर्या राय को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो जो सबसे सस्ता उनको मिला वो अभिषेक बच्चन था. हैं? नहीं, थोड़े तो बिक जाते हैं कि अमिताभ बच्चन का बेटा आ रहा है या ऐश्वर्या राय का हस्बैंड आ रहा है, तो किसी न किसी नाम पे. नहीं,
ने देखा कि वो ऐश्वर्या राय आई कबड्डी का मैच देखने? नहीं। अमिताभ बच्चन आया? नहीं। उनको अपनी कौन आया था क्या? ऐश्वर्या। तो फिर वो, हाँ ठीक है ना, तो इसीलिए तो वो उन्होंने उसको बनाया ना कि वो लेके आ जाएगा एंड ऐश्वर्या राय आ रही है तो टिकट हाथों हाथ बिक जाएंगे। अब साथ में अभिषेक बच्चन आए या नहीं आए कोई फर्क पड़ता नहीं ना। घर पे बैठ के भी बच्चे खिला सकता था वैसे ना, पर वो मैच में वहाँ पे भी तो कोई संभालने को चाहिए था बच्चे को, तो इसलिए आना पड़ता वहाँ। सो फाइनली एक्चुअल में उसको शेयर्स इशू कर दिए फ्री में, पर किसी वजह से किए होंगे ना। यही सब रीजंस है ना। डायरेक्टली अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय ये अफोर्डेबल नहीं रहे होंगे। अब कबड्डी कितना लोग अब देखने लग गए कबड्डी, एंड ये प्रो कबड्डी होने लग गया तो देखने लग गए। नहीं तो किधर गांव में खेला जाता कबड्डी, किधर खत्म, कोई स्टैंडिंग ही नहीं थी गेम की। तो अब कैसा पब्लिसिटी करने के लिए सब करना पड़ता ना। तो क्या हुआ, कंसिडरेशन शेयर्स अगर इशू कर रही है कंपनी, अब फ्री में जीरो वैल्यू थोड़ी ना दिखाएगी, तो वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा। यही सब गड़बड़ियां हैं, ये सब पुराने प्रॉब्लम्स हैं, गड़बड़ियां हैं इनमें। ये हमारे सोचने में गड़बड़ नहीं है, ये उनके सोचने में गड़बड़ है जो पेपर बना रहे। इसकी वजह से हमारे को कन्फ्यूजन होता है। कुछ नहीं करा जा सकता आज की डेट में इसके लिए, ठीक। तो जो लिखा है क्वेश्चन सिर्फ ध्यान से पढ़ो, और कोई इसमें सब्स्टिट्यूट है नहीं। अकाउंटिंग की मैं गारंटी दे सकता हूँ, पीसी की नहीं, क्योंकि इन चीज़ों की क्या गारंटी दोगे ना तुम, क्योंकि जहाँ पे डेटा ही एररनेस है वहाँ पे कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। जो लिखा है वैसा करो, ठीक। नाउ अब यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट करना है। देन राइट वर्किंग नोट 2। Computation of purchase consideration. Computation of PC। अब हमारा जो प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे पीसी निकालने के लिए, जहाँ पे रेशो निकालना है, तो रेशो हमेशा होता है ट्रांसफरर डिवाइडेड बाय ट्रांसफरी, कोई भी बेसिस हो। सो इसमें पहले आ जाएगा शेयर एक्सचेंज रेशो। क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है, ट्रांसफरर डिवाइडेड बाय ट्रांसफरी, ठीक। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर कंपनी कौन है, विभम, डिवाइडेड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी कंपनी शुभम, एंड दिस इज 68 divided by 136. This is 0.5:1. क्या शेयर एक्सचेंज रेशियो फ्रैक्शन में हो सकता है? हो सकता है, ठीक है। आज की डेट में तो 5, 6, 7, 8 डेसिमल पॉइंट तक भी लिख देता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हुआ क्या, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, मीन्स 0.5 शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी फॉर 1 शेयर हेल्ड इन transfer company. 0.5:1 means what? So right, that is 0.50 shares in Shubham Limited. This is transferee company for 1 share held in ट्रांसफरर और शुभ विभम लिमिटेड, ट्रांसफर कंपनी विभम।
This is the interpretation of the share exchange ratio. Standard way of doing this is transferor divided by transferee. Accounts की books में normally standard procedure अक्सर follow होता नहीं है. कभी transferee divide by transfer निकाल दिया, कभी transferor divide by transferee निकाल दिया, कैसे भी कर देते हैं. But you follow one standard procedure, तो confusion होगा नहीं. ठीक है. Then इसके बाद में B, number of shares issued. This is number of shares of transferor company into share exchange ratio. ये सब standard method है. ठीक, you follow these, दिक्कत बहुत कम होती है. Then number of shares of transferor company कितने हैं? 5 करोड़ शेयर्स विभम लिमिटेड के. कितने हैं? 5 करोड़ शेयर into 0.5:1, so this is 2.5 crore shares. ठीक. Then after this C, purchase consideration. Purchase consideration. Purchase consideration is number of shares issued into agreed value per share. और यहाँ पे agreed value per share उन्होंने क्या बोला है? At par. अंडरलाइन किया है हमने उसको. ठीक है. So this is number of shares issued is 2.5 crore share into rupees 10. So this is rupees 25 crore. एंड अगेन यहाँ पे भी तकलीफ होगी. क्यों? क्योंकि जो शेयर 136 रुपीज़ का था उसे हम बता रहे हैं कितने में? 10 रुपीज़ में. तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम. ठीक. एंड अब यहाँ पे हमारे को क्या करना है? वी हैव टू पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी. इज दिस अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेस? मर्जर है. All assets liabilities taken over? Yes. 90% of the shareholder become shareholder? Yes. Consideration discharge in the form of equity shares? Yes. Going concern basis? Yes. Assets liabilities intended to be recorded at book value? Yes. यहाँ last line पढ़ो, goodwill account not to appear in books. Fixed assets appear at old figures. तो यहाँ पे जिनकी वैल्यू चेंज करी थी उनको सबको पुरानी ही वैल्यू पे दिखा रहे हैं, तो सब कुछ बुक वैल्यू पे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं. सो राइट. इन बुक्स ऑफ journal entries and books of Shubham Limited, transferee company. This is amalgamation in the nature of merger. तो यहाँ पे कौन सा मेथड? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड. ठीक. देन सीरियल नंबर, particulars, debit and credit, and these entries we are passing in rupees crores.
This is rupees in crores. रुपीज इन crores. देन पहली एंट्री क्या होगी? पीसी ड्यू. दिस इज बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ विभम लिमिटेड. टू लिक्विडेटर ऑफ विभम लिमिटेड कितना? 25. देन सेकेंड एंट्री incorporate assets and liabilities. Incorporate assets and liabilities. तो यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी? फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितना? 150. उन्होंने क्या बोला है? लास्ट लाइन, गुडविल अकाउंट नॉट टू अपीयर, फिक्स एसेट आर टू अपीयर एट ओल्ड फिगर. तो विभम लिमिटेड की बुक्स में 150 था, तो यहाँ पे 150 ही होगा. देन आफ्टर दिस, अब यहाँ पे करंट एसेट करंट लायबिलिटी की वैल्यू अलग अलग मालूम नहीं है. अगर मालूम होती तो करंट एसेट अलग से लिखते और करंट लायबिलिटी अलग लिखते. तो यहाँ पे अब लिख देंगे नेट करंट एसेट्स अकाउंट डेबिट, वन टू लाइन ब्लैंक टू सिक्योर्ड लोन कितना? 100 टू रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना? 200 टू बिजनेस परचेज कितना? 25. and the difference between PC and paid up share capital of transferor company is to be adjusted against free reserves. and अगर PC ज़्यादा है तो रिजर्व डेबिट करेंगे, अगर PC कम है तो कैपिटल रिजर्व होगा. अब PC कितना? 25 crores एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विभम लिमिटेड कितना है? 50 crores. पीसी कितना? 25 crores. पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विभम लिमिटेड इज 50 crores. सो हाउ मच इज द डिफरेंस? 25. एंड पीसी कम है, पेड अप शेयर कैपिटल ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा? टू कैपिटल रिजर्व. This is PC कितना? 25 माइनस पेड अप कैपिटल कितना? 50. and as per ICI this capital reserve is not available for distribution as dividend. क्यों? क्योंकि ये रियल प्रॉफिट है ही नहीं, रियल प्रॉफिट ही नहीं है. इज दिस पॉइंट क्लियर? एक्चुअल में तो यहाँ कैपिटल रिजर्व आना ही गलत है, क्योंकि एक्चुअल में पीसी होनी कितनी चाहिए थी? जितने नेट एसेट निकाले उतने. कितनी पीसी होनी चाहिए थी? ये 340, बट उसको दिखा रहे हो कितना? 25, क्योंकि तुमने 136 का शेयर कितने में इशू बोल दिया? 25. 2.5 को मल्टीप्लाई करो 136 से, जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है. 2.5 इंटू 136 करो, कितना आता है? 340. अब तुम 136 के शेयर को ये बोलो कि 10 रुपीज़ में इशू कर दे, तो ऑब्वियसली जो वैल्यू आएगी वो सही तो होगी नहीं, बट एग्जाम में तो यही है. इज इट क्लियर? गॉट दिस? एंड क्या आगे भी ऐसे प्रॉब्लम आएंगे? आएंगे जब तक सब कुछ सुधरता नहीं. अकाउंटिंग में अभी भी बहुत इश्यूज़ हैं. जो लोग सीए बन भी गए
ये नहीं बोल सकते कि उनको अकाउंटिंग आती है, सबको नहीं। मेरे हिसाब से सही है गलत ये नहीं बता सकता, मेरे हिसाब से 50% लोगों ने अकाउंट का पेपर पास किया है बस, बट अकाउंट्स नहीं आता। अकाउंट्स का पेपर पास किया बस, ठीक, दोनों में फ़र्क होता है। अकाउंट्स का पेपर पास कर लेना और अकाउंटिंग आ जाने में। नाउ आफ्टर दिस थर्ड, डिस्चार्ज ऑफ पीसी। Discharge of PC, liquidator of Vibham Limited account debit to equity share capital account कितना 25। जितने से ड्यू करी थी हमने पीसी उतने से डिस्चार्ज कर दी पीसी, ठीक है। देन अब क्या करना हमारे को, वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। अब इसमें जो विभम की बैलेंस शीट है उस पे स्केल रख दो, उसको छुपा लो। वो बैलेंस शीट तुम्हारे को अब दिखाई नहीं दे रही। किसकी नहीं देखनी है बैलेंस शीट? ट्रांसफरर कंपनी की नहीं देखनी है बैलेंस शीट। सिर्फ किसकी बैलेंस शीट देखनी है? सिर्फ ट्रांसफरी कंपनी की बैलेंस शीट। और साथ में क्या देखना है? जर्नल एंट्रीज देखनी है। सो राइट, of Shubham Limited after absorption of Vibham Limited. Balance sheet of Shubham Limited after absorption of Vibham Limited. This is serial number, particulars and 2 amount columns, and this is the amount in rupees crores. This is rupees crores. Now A, equity and liabilities. Under that, first shareholders fund, under that A, share capital, and there equity share capital, इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ कितना है इक्विटी शेयर कैपिटल विभम का? सॉरी, पहले शुभम का, शुभम का कितना है? 40 है। शुभम का 40 प्लस जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री देखो, और यहाँ पे शेयर कैपिटल कितना है? कितना है ये शेयर कैपिटल? 25, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ गया? 40 प्लस, अच्छा हाँ, यहाँ पे कितना है? 65। एक मिनट, बताओ बैलेंस शीट का टोटल कितना आएगा? बैलेंस शीट का टोटल आएगा 700। बैलेंस शीट का टोटल आएगा 700। बताओ कैसे? 350 प्लस 350। बैलेंस शीट देखो इधर, दोनों की बैलेंस शीट। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में हमने डिस्कस किया था ना कि अगर इसमें सिर्फ वो अगर मिसलेनियस एक्सपेंसेस और ये सब रहा होता था तो बदलता था, बट ये 350 इसका टोटल, 350 इसका टोटल, तो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 700। अब तो हमारे को बैलेंस शीट का टोटल भी मालूम है, बट ये पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में ही मालूम है, परचेज में नहीं। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में होता ही है।
ठीक है। देन अब आफ्टर दिस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, खुद का कितना 60 प्लस उधर एंट्री में चेक करो 0, सो कितना आ गया 60, दिस इज 135। सॉरी 125, चलो इनर कॉलम में लिख लें ये 125। देन इसके बाद में बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस अपने उसके खुद के कितने हैं 150, शुभम के। एंट्री में देखो, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना 200, रिजर्व्स एंड सरप्लस 200, ठीक है। दिस इज 350, से टोटल कितना आ गया 475। इज इट क्लियर? देन इसके बाद में नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में यू आर हैविंग सिक्योर्ड लोन, एंड सिक्योर्ड लोन में अपना था 100 और यहाँ एंट्री में चेक करो कितना है, वहाँ भी 100 है, सिक्योर्ड लोन 100, देन दिस इज 100, सो ये टोटल कितना हो गया 200। डायरेक्टली आउटर कॉलम में ही ले लेता है क्योंकि और कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है, 200। देन आफ्टर दिस करंट लायबिलिटीज, एक्चुअल में करंट लायबिलिटीज हैं तो बट हमारे को मालूम नहीं है कितना, नील हैं तो बट हमारे को नहीं मालूम, तो अब हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। अगर उन्होंने लिख भी दिया होता करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी की वैल्यू करके नेट लिखा होता तो अलग अलग ले लेते फिर हम उसमें। सॉरी इसमें एक चीज़ छोड़ दी ना, बैलेंस शीट का टोटल क्यों नहीं मैच हुआ, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस छोड़ दिया ना हमने इसमें, कैपिटल रिजर्व एंट्री में से। अब ये गलती एकदम ध्यान में आती है ना, एक कैपिटल रिजर्व छोड़ दिया, ठीक। अगर तुमने छोड़ दिया तो बैलेंस शीट में वो अमाउंट टैली नहीं हो रहा, 675 जैसे ही बोला मतलब गलत हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व कितना 25, ये क्या है कैपिटल रिजर्व है, ठीक। सो दिस इज 375। लुक हो ही नहीं सकता था बैलेंस शीट टोटल 675, क्यों? हमारे को अगर टोटल मालूम है इसका मतलब हमारे को मालूम है कि अगर कुछ डिफरेंट आया तो गड़बड़ हो चुकी, ठीक। दिस इज कितना था यहाँ पे ये 375, दिस इज 500 और ये 200 से टोटल आया 700, ठीक। होना ही था
लोग 90% मैंने बोला पहली बार में, 10%। अगर टोटली मालूम है तो फिर तुम्हारे को मालूम होगा ना कि एरर हो गई कहीं, ठीक। मैंने बिना बैलेंस शीट बनाया मालूम था 675 टोटल नहीं आ सकता, तो 700 आना चाहिए तो आना चाहिए, और टैली होगी अब 700 पे, 675 पे हो ही नहीं सकती थी टैली। देन अब वही है, एग्जाम में अब तुम जाओगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल प्रैक्टिस के साथ में और जाओगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। देन बी एसेट्स, अंडर दैट नॉन करंट एसेट्स, under that fixed assets, there you are having tangible asset, tangible asset अपना था कितना 150, एंट्री में देखो, एंट्री में देखो फिक्स एसेट 150, फिक्स एसेट 150, फिक्स एसेट 150, तो यहाँ पे कितना आ गया, दिस इज 150, सो ये आया 300। देन इंटेंजिबल, अपना गुडविल है नहीं, एंट्री में गुडविल है नहीं, सो दिस इज 300। देन आफ्टर दिस करंट एसेट्स, अब करंट एसेट्स कितना 200 अपना है, प्लस एंट्री में देखो तो ये जो नेट करंट एसेट्स है, अब इसको हमारे को करंट एसेट्स ही लेना पड़ेगा, सो दिस इज 200, दिस इज 200, सो टोटल कितना आया, तो इफ्स एंड बट्स है ही नहीं उसमें। अगर गलती से 675 टोटल तुमने बोला मतलब गलत था, गलती कर दी वहाँ। आना है टोटल बैलेंस शीट का कितना 700, मतलब 700 ही बैलेंस शीट का टोटल आएगा। इसके बाद में भी अगर बैलेंस शीट टैली नहीं होती तो फिर कुछ नहीं कर सकते। एंड पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में टोटल ऑफ बैलेंस शीट पहले ही मालूम होता। पीसी तुम कुछ और भी निकाल देते, 340 भी निकालते, तब भी बैलेंस शीट टोटल उतना ही आता। सर क्लियर? ठीक है, चलो आज के लिए फिर इतना ही रखता है। थैंक यू वेरी मच।